lift our voices, oh Father, and we just thank you for the way you are, oh Father. Lord, you are the creator of this universe, oh Father. You are the creator, oh Father, of every living being on this earth, oh Father. Lord, we appreciate you, Lord, because we are special in your eyes, oh Father. We thank you because we are special in your eyes, oh Father. Thank you, Lord, because we are unique in your eyes, oh Father. And you have taken the time to create us in your own image and likeness. और प्रभु आपने समय लिया है प्रभु हमें बनाने के लिए प्रभु आपकी स्वरूप में प्रभु. Let us just open up our mouth and say, Father, thank you, Lord, for bringing me here. और हम अपने मुंह खोलेंगे और धन्यवाद देंगे कि हमें यहाँ पे प्रभु ने लेकर आया है. Let us just continue to thank Him. Let us just continue to appreciate Him. हम निरंतर प्रभु को धन्यवाद देंगे, निरंतर उनकी सराहना करेंगे. Even as we get into worship. और जैसे हम आराधना में जाते हैं. Let us just ask the Lord to forgive us in any area of our life if we have fallen short of His glory. और हम प्रभु को कहेंगे कि वो हमें क्षमा करेंगे हम अगर कोई भी क्षेत्र में अगर हम उनकी महिमा से नीचे गिर गए हैं. Any area of our lives, if by thoughts, by words, by deeds, or by our actions, we have sinned against Him. Let us just ask His forgiveness. हमारे कामों के द्वारा या हमारे बोलने के द्वारा अगर कोई भी कारण वजह हमें प्रभु के विरोध अगर हमने कोई पाप किया है तो हम उनसे क्षमा मांगेंगे. And even as we get into worship, let us just close our eyes. और जैसे हम आराधना में जाते हैं हमारे आंखों को बंद करेंगे. And lift our hands and lift our voices. और हमारे हाथों को उठाएंगे और आवाज़ों को ऊंचा करेंगे. Hallelujah.
Father, we thank you, Lord, even as we are here, Father. हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जैसे हम यहाँ पर आए हैं। Lord, we just submit ourselves, O Father. हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु। Lord, we submit ourselves the way we are, O Father. और जैसे हम हैं प्रभु वैसे हम अपने आप को समर्पित करते हैं। Lord, this morning we ask you, Daddy, to use us like never before, O Father. प्रभु हम मांगते हैं कि तू हमारा उपयोग कर प्रभु जैसे आपने कभी ना किया हो। Lord, we just appreciate you, Lord, for whatever you have done for us throughout this week, oh Father. प्रभु हम आपको सराहते हैं जो भी आपने हमें हमारे लिए किया है इस हफ्ते भर। There are so many things that went around in this country, oh Father. और ऐसी बहुत सारी चीजें हुई प्रभु इस संसार में। But Lord, we just appreciate you because we were not a victim of it, oh Father. प्रभु हम लेकिन धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम उसके शिकार नहीं बने। Lord, you took care of us. प्रभु आपने हमारा ख्याल रखा। You took care of our families. हमारे परिवार को संभाला। Lord, you took care of each and every one of us, O Father. प्रभु हम सभी का आपने ख्याल रखा। And we thank you for it, O Father. और इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, there is none like you, O Father. और कहते हैं कि तेरे जैसा कोई और नहीं प्रभु। Lord, you are the Alpha and you are the Omega, O Father. प्रभु आप ही अल्फा हो ओमेगा हो। Lord, you are the beginning and you are the end, O Father. प्रभु आप ही शुरुआत और अंत हो। Lord, we worship you, O Father. हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord.
योग्य नहीं है। Nobody is worthy of our worship. हमारे आराधना के कोई योग्य नहीं है। Nobody is worthy of what you are, Father. और जो कुछ भी आप हैं प्रभु, उसके तुलना में और कोई योग्य नहीं है। Lord, we just appreciate you, Lord, for that cross of yours, Father. हम केवल आपको धन्यवाद देते हैं आपके उस क्रूस के लिए। Lord, we thank you, Lord, because you were the one who took it upon yourself, Lord, to take our sin and shame, Father. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु उस हमारे शर्म को और प्रभु हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिया। And that is why it makes you worthy of it, Father. और इसीलिए वो आपको योग्य बनाता है प्रभु। Lord, it makes you worthy of everything, O Father. और वो सभी के लिए प्रभु आपको योग्य बनाता है। We give you Let us continue to be in the mood of worship. तू भला है, 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 तेरा सिंहासन
सचमुच परमेश्वर तू भला है, तेरी करुणा परमेश्वर सदा के लिए बनी है। तू राजा है परमेश्वर, जो सिंहासन पर विराजमान है, जो स्वर्ग में प्रभु हमारे लिए जगह बनाने गया है। प्रभु तू हमको मेमना न रहा परमेश्वर, बल्कि परमेश्वर तू न्यायी राजा है। प्रभु तेरे आगमन का प्रभु हमें इंतजार है। प्रभु जब वो नरसिंह का फूका जाएगा परमेश्वर, हमें उसका इंतजार है। प्रभु हम उसे सुन सके, यही हमारी प्रार्थना है। प्रभु जब तू बादलों पर आएगा तो हम तेरे साथ उठा लिए जाएं, यही हमारी प्रार्थना है। प्रभु आज प्रभु हम पीछे नहीं रहना चाहते। प्रभु हम विचार करके भी प्रभु हमें भय होता है परमेश्वर, हम सहम जाते हैं कि यदि हम यहाँ रह गए तो। प्रभु आज हमारे जीवन को परमेश्वर, प्रभु यदि हम ऐसा कोई भी प्रभु पाप में है, या प्रभु ऐसा कुछ भी हमने किया है परमेश्वर जिसकी क्षमा हमने नहीं मांगी है, जिसके कारण प्रभु यदि तू आज प्रभु आता है उस बादलों पर और हम उठा लिए नहीं जाएंगे, प्रभु आज हम तुझसे क्षमा मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु हम तेरे साथ में खराई से चलना चाहते हैं, हमें शुद्ध कर परमेश्वर। हमारे सोच विचार को परमेश्वर, हमारे चाल चलन को प्रभु, सब कुछ प्रभु यीशु समान बना। प्रभु जैसे यीशु मसीह पृथ्वी पर प्रभु मनुष्य, परमेश्वर होने के नाते भी परमेश्वर परिपूर्ण मनुष्य था, और जैसे पाप रहित जीवन जिया परमेश्वर, वैसे हमें जीने के लिए प्रभु तू सहायता कर। प्रभु अनजाने में भी होने वाले पापों से प्रभु तू हमें दूर रख। प्रभु हमारा चरित्र, हमारा बर्ताव, सब कुछ यीशु समान होने दे प्रभु। यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की, आमीन। आमीन। क्या प्रभु की स्तुति करने के लिए तैयार है? ताली बजाएंगे, हम नाचते हुए इसकी आराधना करेंगे, मैं स्तुति करेंगे। दिल में
को यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन दिन उसके लिए उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। आमेन। क्यों हमें करना है? क्योंकि परमेश्वर सारी स्तुति के, सारे महिमा के योग्य है। आमेन। गीत गाएंगे, सिंग अनटू द लॉर्ड अ न्यू सॉन्ग। और पर जो हमने ये गीत वचन पढ़ा है वो इंग्लिश में यही कहता है, सिंग अनटू द लॉर्ड अ न्यू सॉन्ग, for the Lord is great and greatly to be praised. Amen.
continue to see, look at heaven. और हम निरंतर स्वर्ग की ओर देखेंगे। Let us just lift our voice this morning हम हमारे आवाज को उठाएंगे and let us just thank the Lord because we are here. और हम धन्यवाद देंगे कि प्रभु यहाँ पर है। I come before you today. And there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
our silver. वो हमारे चांदी या सोने के लिए नहीं तरस रहा है। He does not want our money. वो हमारे पैसे उसको हमारे पैसे की जरूरत नहीं है। The only thing that the Lord wants this morning और एक ही चीज जो प्रभु चाहता है हमसे is our heart. वो है हमारा हृदय। The word of God says that the man that was closest to God's heart or next to his heart और प्रभु का वचन कहता है कि वो व्यक्ति जो प्रभु के बहुत ही करीब या दिल के बहुत ही करीब था was David. वो दाऊद। God was not interested in how he looked. प्रभु इससे दिलचस्पी नहीं रखता था कि वो कैसे दिखता है He was not interested in what he brought unto him. या फिर क्या वो उस प्रभु के लिए ला रहा था, उससे प्रभु दिलचस्पी नहीं रखता The था। only thing that God was interested in David was his heart. और एक ही चीज से जो प्रभु दिलचस्प रखता था वो था उसका हृदय। And the word of God says that he was thankful. और प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है कि दाऊद हमेशा धन्यवाद देता था। If you have a heart of thankfulness, अगर आपके पास एक हृदय है जो धन्यवाद का है, if you are someone who is not complaining, और अगर आप ऐसे हो जो शिकायत नहीं करते हो या फिर कुड़कुड़ाते नहीं हो, if you are someone who is not murmuring, अगर आप ऐसे नहीं हो जो कुड़कुड़ाते नहीं हो, then today the Lord will touch you. तो फिर आज प्रभु आपको स्पर्श करेंगे। The reason why the children of Israel were always behind was they were complaining. और इज़राइल के लोग हमेशा इसलिए पीछे रहते थे कि वो हमेशा कुड़कुड़ाते थे। No matter what the Lord did for them, और इससे कोई मतलब नहीं कि प्रभु ने उनके लिए क्या ही किया हो, no matter what the Lord brought for them, और क्या नहीं कि प्रभु उनके लिए लाता हो, no matter which land the Lord gave them, और इससे कोई मतलब नहीं कि कौन सी भूमि प्रभु ने उन्हें दी, they complained. लेकिन वो हमेशा शिकायत करते थे। This morning I want our church to not complain. आज सवेरे मैं चाहती हूँ कि हमारी कलीसिया जो है वो शिकायत न करे। Yes, it is very difficult. हाँ, ये बहुत ही कठिन है। It is very difficult to be thankful at all times. और ये बहुत ही कठिन होता है कि हम हमेशा प्रभु को धन्यवाद दें। It is very difficult when everybody else around is growing and you are not. It is difficult to be thankful. और ये बहुत कठिन हो जाता है कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो बढ़ रहे हैं लेकिन आप नहीं बढ़ रहे हो, तो धन्यवाद देना मुश्किल हो जाता है। But do not forget you are breathing the breath of life. लेकिन ये ना भूलें कि आप जो जीवन का जो श्वास है वो आप ले रहे हो। You are able to see what so many people cannot see. और आप वो देखते हो जो बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं। You are able to open up your mouth and thank the Lord. आप अपने मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद भी दे सकते हो। You are able to walk. You are able to do things that so many people cannot do. आप चल सकते हो और आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। Why are we not thankful for the small things that the Lord has done for us? और वो सारी छोटी छोटी चीजें जो प्रभु हमारे लिए करता है उसके लिए हम धन्यवाद क्यों ना दे। Let us just be thankful this morning और आज सवेरे हम केवल प्रभु को धन्यवाद देंगे and be thankful with a grateful heart. और एक ऐसा हृदय जो आभारीपन का हो। With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank
करता हूँ प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, सिंहासन के पास। ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, खाली हाथों से अपने सर को मैं झुकाता हूँ। चोरी मेरी भर दे, मैं तेरे पास आता हूँ, खाली हाथों से अपने सर को मैं झुकाता हूँ। चोरी मेरी भर दे, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां। यीशु से तुझको चुना, अपना बना लिया, तेरा मेरा है दिया। यीशु तुझे ढूंढता हुआ, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां। तू यहाँ फिर से तुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया। यीशुआ ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ काम मेरा, ले चल मुझे। Just lift our hands. और हमारे हाथों को उठाएंगे, As we lift these hands unto the Lord, और जैसे हाथों को हम प्रभु की ओर उठाते हैं, He is going to lead us in the way that He wants to lead us. वो हमें ऐसे अगुवाई करेगा जैसे वो चाहता है। The song says that He holds our hands और गीत ऐसे कहता है कि वो हमारे हाथों को पकड़े रखा है and He takes us ahead. और वो हमें आगे ले चलता है। You know, when He takes us, when He holds our hands, और जब वो हमारे हाथों को पकड़ता है nobody can then snatch us away from Him. और फिर हमें उनके हाथों से कोई
Maybe today when you've come here, और शायद आप यहाँ पर आज आए हो and there may be certain condemnations that you may be carrying. और शायद ऐसी कोई शर्मिंदगी आप अपने साथ ले चल के आए हो Condemnation of the sin. और पापों की शर्मिंदगी Condemnation of things that you didn't want to do but you still did it. और ऐसी शर्मिंदगी जो आप नहीं चाहते थे कि आप कुछ पाप करें लेकिन फिर भी आपने किया It doesn't matter. इससे कोई मतलब नहीं The blood of Jesus यीशु का लहू sanctifies us. वो हमें शुद्ध करता है As you call upon that sin, और जैसे हम उस पाप को पुकारते हैं as you confess your sin और जैसे आप अपने पापों को कबूल करते हो in front of you and God, आपके सामने और प्रभु के सामने nothing between you, आप दोनों के बीच में कुछ नहीं और the God that delivers us जो परमेश्वर हमें छुटकारा will देता है cleanse us today in Jesus' वो name. हमें शुद्ध करेगा यीशु मसीह के नाम में Just open your mouth and ask the Lord to help you. और केवल अपने मुंह को खोले और प्रभु से कहे कि वो आपकी सहायता करे Father, help me पिता मेरी सहायता कर not to sin again. कि मैं फिर से पाप न करूं The same sins, O Lord, that I do over and over again. और वही पाप जो मैं दोबारा करते रहता हूँ With my actions, मेरे कार्यों के द्वारा knowingly, unknowingly. जाने या अनजाने में Father, I pray, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ deliver me from those small foxes, और छोटे छोटे रोटियों से प्रभु मुझे छुटकारा which दे allows me not to live holy. और जो मुझे अनुमति नहीं देता कि मैं पवित्र जीऊं Father, cleanse me today in the name of Jesus. प्रभु मुझे शुद्ध कर आज यीशु मसीह के नाम में Ask the Lord to cleanse you right now. और प्रभु से मांगे कि वो आपको शुद्ध करे Ask the Lord to cleanse your family. और आप प्रभु से मांगे कि वो आपके परिवार को शुद्ध You know, when करे David prayed every day, और जब दाऊद हमें हर दिन प्रार्थना करता sorry, था when Job prayed every day, जब अय्यूब हर दिन प्रार्थना he करता did था not just pray for his own sins, वो केवल अपने पापों के लिए नहीं but he प्रार्थना prayed करता for था, his family. लेकिन वो अपने परिवार के He लिए sacrificed for his family. उसने बलिदान दिया अपने परिवार Are के you लिए। ready to sacrifice today for your family? क्या आप तैयार हो अपने परिवार के लिए Are you बलिदान ready to देने के लिए? stand in the gap for your family? क्या आप तैयार हो कि आप और अपने परिवार के बीच में आप ऐसे मध्यस्थी करते हुए खड़े रहे As you pray, जैसे आप प्रार्थना करते the हैं Lord is going to heal you. प्रभु आपको चढ़ाई करेगा The Lord is going to deliver your family. आपके परिवार को छुटकारा देगा The Lord is going to do greater things in your life. और प्रभु आपके जीवन में महान कार्य को करेगा Today, even as we have come here for a healing Sunday, और जैसे आज हम यहाँ पर आए हैं चढ़ाई की रविवार के दिन we cannot pray for anybody unless we ourselves are healed. और जब तक हम खुद चढ़ाई नहीं पा लेते हम दूसरों के लिए चढ़ाई के लिए If प्रार्थना we don't करते see हैं। deliverance in our life, अगर हम खुद के जीवन में छुटकारा नहीं how can we पाते, pray for deliverance for others? तो हम दूसरों के लिए छुटकारे के लिए कैसे प्रार्थना कर सकते हैं Pray unto the Lord. आप प्रार्थना करें प्रभु से Lord, I want to be first to get my healing. प्रभु मैं पहला होना चाहता हूँ मेरी चढ़ाई को पाने के Ask the लिए Lord to make you first to get your healing. और प्रभु से मांगे कि वो आपको पहला चढ़ाई आप ही को दे Lord, have mercy on me. हे प्रभु मुझ पर दया कर Lord, have mercy on हे me. प्रभु मुझ पर दया कर Lord, heal me first. प्रभु मुझे पहले चढ़ाई Heal दे my mind. मेरे मन को चढ़ाई Heal my life. मेरे जीवन को चढ़ाई Heal my past. मेरे भूतकाल को चढ़ाई Heal me physically. प्रभु शारीरिक रूप से मुझे चढ़ाई दे Heal me mentally. प्रभु मानसिक रूप से मुझे चढ़ाई दे Everything that is trying to hold me down. और हर एक चीज हो जो मुझे नीचे Everything that is trying to pull me down. हर एक चीज जो मुझे नीचे खींच कर Father, start with me today. प्रभु मेरे साथ शुरुआत कर Start with me today. प्रभु मेरे साथ शुरुआत कर Not with my neighbor, but with me today. ना ही मेरे पड़ोसी के साथ लेकिन मेरे साथ प्रभु Not with people around me, but with me today. ना ही मेरे लोग जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं उनसे नहीं लेकिन मुझसे प्रभु Father, I pray, Lord, come and have a word with me today. प्रभु मैं कहता हूँ कि आप आकर मुझसे बातें करें Father, I want to hear your voice. मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ Even if I hear that one word from you और today, केवल एक शब्द भी अगर मैं आपकी सुन लूँ I will be happy, Lord. आप मैं खुश हो जाओ प्रभु And I want you to start with us today, और Lord. मैं चाहता हूँ कि प्रभु आप हमारे साथ शुरुआत In करें Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की Now that you have prayed for yourself, अभी आपने जब आपके लिए प्रार्थना किया है pray for your family to be healed. और प्रार्थना करें कि आपके परिवार वाले चंगाई पाए Sickness बीमारी takes away a lot of things. बहुत सारी चीजों को ले लेता है It can take away your peace of mind. वो आपके जो मन में शांति है उसको ले It लेता can है take away your entire life to come over it. और आप अपना पूरा जीवन भर उसमें व्यर्थ करके उसके उभर कर आगे से वो चला जा सकता है It can take away all your money. आपके सारे पैसे को ले सकता It है can take away everything
which is yours rightfully, but it can just steal it away from you. और जो कुछ भी आपका है वो आपसे छीन कर ले जा सकता है। Today, even as you're standing here, और जैसे आज आप यहाँ पर खड़े हो prophetically, और भविष्यवाणी करते हुए speak to your family. अपने परिवार से बातें करिए Bring them on the spiritual ground और उन्हें लेकर आए इस आत्मिक भूमि पर and tell the Lord प्रभु से कहिए that heal my family. और मेरे परिवार को चंगाई कर। Whatever sickness that your people in your family are going through और right now, ऐसी कोई भी बीमारी जो आपके परिवार वाले गुजर रहे हैं इस समय as you speak prophetically in their life, और जैसे आप भविष्यवाणी करते हुए उनके जीवन में आप बात करते the हैं Lord is going to heal that area in the name of और Jesus. प्रभु उस क्षेत्र को यीशु मसीह के नाम से चंगाई देगा। If you are having a problem with your children who have fallen sick again and again, अगर आपके बच्चों के साथ कोई परेशानी है जो बार-बार बीमार रहते हैं if your children are not prospering the way they should prosper, और अगर आपके बच्चे उस तरह से उन्नति नहीं कर रहे जैसे उन्हें करना चाहिए, if they are not experiencing success in their life, अगर वो सफलता को नहीं अनुभव कर रहे उनके जीवन में like what others are doing, जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं today even as we pray for our children, और आज जैसे हम हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते that the हैं Lord will remove the cloud of darkness from their life. और कि परमेश्वर उनके जीवन से वो जो अंधकार का जो बादल है उसको ले You know, if your children are around, just hold them, अगर आपके बच्चे आपके साथ हैं तो उनको पकड़े, hold their hands, उनके हाथों को पकड़ ले and just pray for them. और उनके लिए प्रार्थना करें Just pray for all the children. Just hold their hands. और सारे बच्चों के लिए आप पकड़ के प्रार्थना करें। Just hold all the children's hands. Brother Shine, hold the hand. It's okay. Mother, hold the daughter's hand. Father and mother, hold the son's hand. और माता पिता If your children are not here, अगर आपके बच्चे यहाँ पे नहीं हैं go fast. Let's just don't waste our time. Children, if you want to go down, it's okay. You know, just be there. Be with your parents. As your parents are going to bless you, और जैसे आपके बच्चे आपको आपके माता पिता जैसे आपको every cloud of darkness over your children हर एक बादल जो अंधकार का है जो हमारे बच्चों के ऊपर है will be removed in the name of वो Jesus. निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम में, It will be removed in the name of Jesus. निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। Every cloud, हर एक बादल say to your children, every cloud of darkness over you और अपने बच्चों से कहें कि हर एक अंधकार का जो बादल आपके बच्चों के ऊपर है will be removed in the name of वो Jesus. निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम There में। is healing in this land. और इस भूमि पर चंगाई है। You know, I don't want anybody to be standing alone. मैं नहीं चाहती कि कोई भी अकेले खड़े रहे। If you're with your husband or your wife, stand with together. अगर आप अपने पति या पत्नी के साथ हैं तो उनके साथ खड़े रहे Come and hold hands. और आप हाथों को पकड़ ले। Hallelujah. हालेलुया। Yeah, are you listening to me? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? Husband doesn't listen, wife goes and holds the hand. अगर पति नहीं सुन रहे हैं तो पत्नी जाकर उनका हाथ पकड़ ले। If there is a sister who is sitting alone, hold another sister's hand. It's और fine. अगर एक बहन अकेले खड़ी है तो फिर दूसरी बहन का हाथ पकड़ ले Hold the hand. Don't be alone. और आप अकेले ना खड़े रहे। This is a corporate prayer that you're doing. Hold the hand. और हम ये एक ऐसा कॉर्पोरेट प्रार्थना If you're a कर रहे हैं। family, make a circle of prayer. अगर आप एक परिवार है तो फिर एक ऐसे Hold both hands. Your hand shouldn't be on the other side. और Make a circle. आप एक ऐसे सर्कल बनाकर प्रार्थना करें। दोनों हाथ पकड़ो. दोनों हाथ पकड़ के रखो। दोनों एक सर्कल बनाओ साथ में. तीन रहेंगे तो 3 का सर्कल बनाओ. अगर 3 जन है तो फिर तीनों लोग एक साथ पकड़कर प्रार्थना करें। चेयर वेयर को छोड़ दो. हाँ. और अभी घोषणा करो अपने जीवन में. And now you decree upon your life. Children pray. Even children, as you pray, parents pray for your children. और जैसे बच्चे प्रार्थना करते हैं तो माता पिता भी प्रार्थना कर रहे हैं। Prophesy to your situation. अपने परिस्थिति के ऊपर आप भविष्यवाणी करें। Prophesy to your situation. अपने परिस्थिति पे आप भविष्यवाणी करें। Prophesy. Don't keep your mouth shut. अपने मुंह को बंद न रखें। When you're into the Lord's hand and you're supposed to ask, you ask. और जब समय है कि प्रभु से मांगना है तो मांगे आप। मांगो तो मिलेगा. When you ask, you shall receive. Whatever you pray for your neighbor, that will be happening in your life. जो कुछ भी आप अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करोगे वही आपके जीवन में भी होगा। Even as you're praying for your neighbor, जैसे आप अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो the Lord is going to touch your own family in the name of Jesus. प्रभु आपके परिवार आपके खुद के जीवन को भी प्रभु स्पर्श करेगा। Pray for your children, your spouses, your parents, whoever you're holding your hand to. और अपने
Jesus. प्रभु अभी आपको चंगा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। As you pray for your distant relatives, और जैसे आपके दूर के रिश्तेदारों के लिए भी आप could be your प्रार्थना करें। grandparents, शायद वो आपके दादा दादी हो सकते हैं could be your grandchildren. या फिर आपके नाते पोते हो सकते हैं। As you pray today, और जैसे आप प्रार्थना करते हो you're आज, not just praying for a generation, आप केवल एक पीढ़ी के लिए प्रार्थना नहीं कर but रहे your हो, prayers of seeds that you're sowing लेकिन ऐसे एक प्रार्थना का बीज आप बो रहे हो that will bring generational fruits ahead of you. और आने वाले दिनों में वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक फल को लेकर आएगा। I want you to pray. मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करें, Don't show me, आप मुझे ना but दिखाएं, pray unto the Lord. लेकिन आप प्रभु से प्रार्थना करें। Don't show me, मुझे ना दिखाएं, pray. आप प्रार्थना करें। I don't want to see you, but I want you to pray. मैं आपको नहीं देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना I करें। want you to pray as children, as youths. I want you to pray. और बच्चे होने के नाते, युवा होने के नाते मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करें। Now, children, pray for your parents. अभी बच्चे अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करें Sisters, pray for your sisters. और बहन अपनी बहनों के लिए प्रार्थना करें Husbands, pray for your wife. और जो पति है अपने पति के लिए प्रार्थना करें Wives, pray for your husbands. और पत्नी अपने पति की प्रार्थना करें, Bless them. उन्हें आशीषित Even करें। if your husband, your wife is not here, अगर आपके पति या पत्नी यहाँ पर नहीं है you तो भी, pray that wherever they are, और आप प्रार्थना करें कि जहाँ कहीं whether हो, you're married or not married, अगर आप शादीशुदा हो या that नहीं, God will touch them, कि प्रभु उन्हें स्पर्श करे, that the Lord will touch them. कि प्रभु उन्हें स्पर्श करे। Even if you're not married, the Lord will touch your spouse wherever they are. अगर आप शादीशुदा नहीं है तो भी प्रभु आपके पति या पत्नी को जहाँ कहीं हो रहे प्रभु उन्हें स्पर्श करेगा And the Lord will bring them at the right time, at the right place in the name of Jesus. प्रभु उन्हें सही समय में सही जगह पर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की। Now listen to me as you're holding hands. और जैसे आप हाथ पकड़े हुए हैं, मुझे सुने। छोड़ो मत हाथ. Don't leave your hands. Look at your neighbor. अपने पड़ोसी को देखें। अपने पड़ोसी को देखो, दूसरों का पड़ोसी को मत देखो. Okay? This is the corporate chain that you've created. और ये वो कॉर्पोरेट चेन जो हमने अभी बनाया है। Now you're going to pray for one thing. एक चीज के लिए हम प्रार्थना करेंगे We're अभी। going to pray for finances. हम पैसों के लिए प्रार्थना करेंगे Healing in the area of finances. और चंगाई आर्थिक परिस्थिति में। I've seen some of us, मैंने देखा है हम में से कुछ that some लोगों of को us have the abilities. क्योंकि काबिलियत है हम में से, The God, that the Jehovah that we serve, और वो यहोवा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, has already given you talents. उन्होंने आपको वरदान दिया है, But somewhere, लेकिन कहीं ना कहीं the devil is trying to rob it from you. लेकिन शैतान आपसे वो चुराना चाहता है, Especially in the area of finances. और विशेष करके आर्थिक परिस्थिति में। Right now, as you pray, और अभी जैसे आप प्रार्थना करते हो, you will pray आप प्रार्थना करोगे that God would stitch all holes in your pocket from today in Jesus' कि name. आपने जेब जहाँ पर फटे हुए परमेश्वर उसको सिला ले, All your pockets हर एक आपकी जो जेब है with holes. जो होल से खड्डा हो गया। छेद है उसमें, खड्डा हो गया, छेद हो गया, जो भी हुआ है, वो सिलेगा परमेश्वर के लहू से. वो यीशु मसीह के लहू से उसको सिल जाएगा। That you will not lose money anymore in Jesus' लेकिन name. आप अभी से कभी भी पैसों को गवाओगे नहीं यीशु You will मसीह not के नाम lose it to doctors in Jesus' में। आप name. डॉक्टर को पैसे देने के लिए गवाओगे नहीं। Now start praying. अभी प्रार्थना करना शुरू As करें you're praying, ask the Lord, Lord, every area और प्रार्थना करेंगे हर एक क्षेत्र where I'm losing money, जहाँ पर मैं पैसे को गवा रहा हूँ where I'm giving money where I'm not supposed to. और जहाँ पर मुझे पैसे नहीं देने चाहिए वहाँ पर मैं दे रहा हूँ। Even if I buy a new thing, it becomes spoiled. अगर मैं कुछ नया खरीदता हूँ फिर भी वो खराब हो जाता My है old things are just getting spoiled all of a sudden. और मेरी पुरानी चीजें अचानक से खराब हो रही है। I'm supposed to put money in tithe and offering, but somewhere the devil comes and steals it from me. और मुझे अर्पण में और दशमांश में पैसे देने चाहिए, लेकिन जो शैतान आकर उसको चुरा लिया है। Every stealing that the devil has done, हर एक चुराना जो शैतान ने किया है, I break those powers in the name of और उन Jesus. सामर्थ्यों को मैं तोड़ता हूँ अभी यीशु
If there is any area of your life, अगर आपके जीवन में कोई भी अगर क्षेत्र हो, as you can leave the hands, जैसे आप अपने हाथों को भी छोड़ सकते हो, if there is any area in your life अगर आपके जीवन में कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो where you need healing, जहाँ पर आपको चंगाई की जरूरत है, where you think you need deliverance, जहाँ पर आप सोचते हो कि आपको छुटकारा की जरूरत है, touch that area. उस क्षेत्र को आप छुए अभी, Touch that area. उस क्षेत्र को छुए अभी। It could be in your mind. शायद वो आपके मन में भी हो सकता है, It could be in your head. वो आपके सर में हो सकता है, It could be in your stomach. वो आपके पेट में भी हो सकता है, It can be in your back. वो आपके पीठ पे भी हो सकता है, It can be anywhere. वो कहीं भी हो सकता Or है, it could be a problem with somebody in your family. या फिर ऐसी कोई समस्या जो आपके परिवार में हो। You know, as you touch your body part, जैसे आप अपने शरीर के उस अंग को छू रहे हो, God is going to heal that person who's experiencing that problem. और प्रभु उस व्यक्ति को चंगाई देगा यीशु मसीह के As नाम you में। pray today, और जैसे आप आज प्रार्थना करते हो, the Lord is healing us. प्रभु हमें चंगाई दे रहा The है, Lord is healing His church. प्रभु उसकी कलीसिया में- Because of you coming here, somebody is getting healed. और आप यहाँ पर आने की वजह से कोई तो चंगाई को पा रहा है। Lord, heal them. प्रभु ने चंगाई दे, Heal them. प्रभु ने चंगाई दे, Heal them. प्रभु ने चंगाई दे। Father, as your children are praying, और जैसे प्रभु आपके बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, I know, Lord, you're healing. हाँ प्रभु आप उन्हें, हम जानते हैं कि आप उन्हें चंगा कर रहे हो। You're healing them by the blood of Jesus. आप उन्हें चंगा कर रहे हो यीशु मसीह के लहू से, The death on the cross was not just a price, और वो आपका मृत्यु उस क्रूस पर केवल एक कीमत नहीं था, but it was an everlasting gift that you gave us, Lord. लेकिन वो एक अलंकार का एक तोहफा था जो आपने हमें And दिया, that gift was healing. और वो तोहफा वो Let चंगाई your था, children experience that gift today, Lord. और वो आपके बच्चे उस तोहफा का अनुभव कर रहे The हैं, blood that you actually shed, Lord, और प्रभु को लहू को जो आपने बहाया is to make us whole, कि वो हमें योग्य बनाए, make us complete, कि हमें वो पूर्ण बनाए, make us holy, हमें पवित्र बनाए, make us strong. हमें मजबूत बनाए, And we're becoming strong right now in Jesus. और हम हमें मजबूत बन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। Every weakness in the body, हर एक कमजोरी शरीर में, thakanpad, टायर्डनेस, everything is getting removed in the name of Jesus. हर एक चीज वो निकल रहा है यीशु मसीह के नाम में। The devil, if he's speaking any lie in your life, अगर शैतान आपके जीवन में कोई भी झूठ बोल रहा है, especially talking about big critical sicknesses, विशेष करके ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में कह रहा है, we cancel its powers in the name हम of इस Jesus. सामर्थ्य को तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में। If the devil has been speaking in your mind अगर शैतान आपके मन में कुछ कह रहा है and saying the sickness is too big for you, और कहता है कि ये बीमारी आपके लिए बहुत ही बड़ा है, don't pray for this sickness. इस बीमारी के लिए आप प्रार्थना ही ना करें, That area is getting healed in the mind in the name of और Jesus. वो चीज आपके मन से अभी उसको चंगाई होती है यीशु मसीह के नाम Even में, the ones that you've been praying for और वो चीजों के लिए जो आप प्रार्थना करते आए and the हो, ones that you've not prayed for, और वो चीज जिसके लिए आप प्रार्थना the नहीं Lord की, is healing you completely from the tip of your head to the sole of your feet in आपके Jesus' सर name. से लेके पैरों तक प्रभु आपको पूरी तरह से चंगा कर रहा Your है, soul is well, आपका प्राण भला है, your body is well, आपका शरीर भी it भला is है, well with your family, आपके परिवार के साथ भला it is है, well with your distant relatives, आपके दूर रिश्तेदारों के it साथ is भी well भला है, with your job, आपके नौकरी के साथ भला it is है, well with your business, आपके व्यवसाय के साथ भला it's है, well in your society, आपके जहाँ पर आप रहते हो सोसाइटी में वो it भी is भला है, well with the country, हमारे देश के साथ भला it है, is well with Manipur, हम मणिपुर में भी भलाई it है, is well in Haryana and other places of India. और हरियाणा और दूसरे क्षेत्र जो भारत देश के है वहाँ पर भी भलाई है, The blood of Jesus क्योंकि यीशु मसीह का लहू is covering the entire country. वो पूरे भूमि को कवर किया है, And even the people who are admitted in Wokhar, और वो लोग जो भोपाल हॉस्पिटल में भी उन्हें भर्ती it किया is है, well with them in Jesus' उन्हें name. उनके साथ भी भलाई है यीशु मसीह के The नाम में, people are getting healed right now in Jesus' और name. वो लोग अभी चंगाई को पा रहे हैं यीशु मसीह के Everyone नाम on में। the deathbed, हर एक वो लोग जो मृत्यु के बिस्तर पर पड़े हैं, maybe seeing the angel, शायद वो स्वर्गदूतों को देख रहे हैं,
they are going to return back in Jesus' वो name. वापस लौटेंगे यीशु मसीह के नाम में। None will die before their destiny in Jesus' और name. कोई भी अपने समय या नियति के पहले नहीं मरेंगे यीशु मसीह के We नाम will में। fulfill our destiny in Jesus' हम name. हमारी नियति को पूरा करेंगे यीशु मसीह In के नाम में। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Let us be seated as we clap for the Lord. Hallelujah. Name. You know, whatever we have prayed till now, अभी तक जो भी हमने प्रार्थना किया है, if you want to experience the benefit of what we have prayed, जो हमने अभी तक प्रार्थना की है, उसके यदि लाभ को आप अनुभव करना चाहते हैं, you need to just thank the Lord. तो हमें परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद देना You है। need to believe and make it a point in your mind. आपको विश्वास करना है और अपने मन में एक ठान लेना है that I am healed. कि मैं चंगाई पा चुका हूँ। Say to yourself, I am अपने आप से कहो कि मैं चंगाई पा चुका हूँ। I am a conqueror मैं जो हूँ जयवंत हूँ and I am healed today. और मैं आज चंगाई पा चुका हूँ। Say it with confidence now. आप पूरे इसको कॉन्फिडेंस के साथ में बोलो कि हाँ मैं चंगाई पा चुका हूँ। सिर्फ एक ही जन में से हाथ उठा के बोला, बाकी सब ऐसा I am healed. अगर अभी तुम लोग को बोलेगा जाओ 1 लाख रुपए डॉक्टर को तो क्या होएगा? But if God is healing you for free, अगर क्योंकि परमेश्वर आपको मुफ्त में चंगाई दे रहे हैं, कितना एक्साइटमेंट रहना चाहिए? तो कैसे हमें जो है एक्साइटेड होना चाहिए इस Say बात as के if you're लिए। really excited so that the Lord looks at your excitement. आप सच में ऐसा करें कि मैं चंगाई पा चुका हूँ, परमेश्वर उसे देख सके। बोलो बोलो, I'm waiting. मैं चंगाई पा चुकी हूँ यीशु के नाम से। आमीन। Your healing is permanent in और Jesus. वही चंगाई आपके जीवन में सदा के लिए बनी रहेगी। Whatever you do in this place, इस जगह पर आप कुछ भी जो करते हैं, don't look at the pulpit. तो आप यहाँ पर वेदी पर न देखें, Look at the God आप उस परमेश्वर की ओर that we देखें all serve, including me. जिसके हम सारे लोग हमें जोड़कर हम जिसकी सेवा करते So हैं। when you say I am healed in that excitement, जब आप ऐसे एकदम उत्साहित होकर कहते हैं कि मैं चंगाई पा चुका हूँ, the Lord looks at you. तो परमेश्वर उसकी ओर हमारे शब्दों Then की He ओर has to देखता send है। heaven to help you to get that word delivered unto you. तो वो शब्द को जो है सचमुच आपके जीवन में परिपूर्ण करने के लिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। Amen? आमीन। So you are indeed healed in तो Jesus. सचमुच आप जो है चंगाई पा चुके हैं यीशु के नाम से। Honestly, सही मायने में तो we have finished the service. हमारी सभा यहाँ पर खत्म हो चुकी है Healing service was there today. और आज जो है चंगाई की सभा थी। We have done what God wanted us to. हमने वो कर लिया है जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहते हैं। But the most important aspect, लेकिन सबसे अधिक महत्व की बात यहाँ पर है what you started today कि जो आज आपने यहाँ पर शुरुआत किया with your prayer, आपकी प्रार्थनाओं के or somebody praying for द्वारा you, या किसी और ने आपके लिए प्रार्थना किया, it is all in the mind now. ये सारा आपके मन में है। Because when you go back home, क्योंकि आप जब अभी घर जाओगे, what you are experiencing now or you're going to experience later, जो आपने यहाँ पर अभी अनुभव किया या आप घर जाकर या थोड़े समय बाद जिस चीज को अनुभव the करोगे, devil is going to definitely try and fight it back. शैतान जो है उसके खिलाफ जरूर लड़ेगा। So for example, if sister has prayed for a back pain, अगर बहन ने मान लीजिए अपनी पीठ दर्द के लिए प्रार्थना किया है maybe when she goes home, और जब वो घर जाएगी she'll see that pain, poking. थोड़ा सा उनका से लगेगा कि हाँ दर्द तो शायद है अभी, Or maybe it could be really bad. या हो सकता है कि जितना पहले था उससे और ज्यादा हो गया। But at that time, लेकिन उस क्षण when में you thank the Lord जब आप परमेश्वर को धन्यवाद and दोगे say, Lord, I know I am healed. और जब कहोगे कि परमेश्वर मैं जानता हूँ कि मैं With the चंगाई same पा चुका excitement हूँ, that you showed right और now, उसी उत्तेजना के साथ में जो आपने यहाँ पर दिखाई थी, God will see that again. परमेश्वर उसे फिर देखेगा Keep the devil away. और शैतान को लात मार के बाहर निकाल देगा। Amen. आमीन। Do what you want to see. जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं वही करें। Don't you see the reports and believe that? और जो डॉक्टर की रिपोर्ट आपको दिखाती है या कहती है उसे देखकर विश्वास न करें। That is a symptom, वो तो एक ऐसे लक्षण है, but it is not your ultimate end. लेकिन वो आपका जो है अंत नहीं है। Amen. हमें That symptom can be changed. वो जो लक्षण है आपके जो रिपोर्ट्स में दिख रहे हैं उसके अंदर बदलाव आ सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Now I want to share with you something which we spoke right now, और कुछ जो हमने अभी बोला उसके बारे में मैं आपके साथ में बांटना चाहता but I हूँ। want to take you to a place in the Bible लेकिन मैं बाइबल की एक ऐसे अध्याय में आपको लेके जाना चाहता हूँ where healing did not happen. जहाँ पर चंगाई नहीं हुई।
हालेलुया। हालेलुया। हीलिंग हुआ ही नहीं। वहां पर चंगाई नहीं हो पाई वो आदमी उसमें ही मतलब he was having the same problem. और उस व्यक्ति को पूरे समय में वही समस्या होती रह गई। What I want to teach you all with this, मैं यहाँ पर आपको क्या सिखाना चाहता हूँ इस दृष्टांत के द्वारा, whether healing happens doesn't कि happen, भले ही चंगाई हो या ना हो, whether prayer का answers come or doesn't come, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आता है या नहीं आता what है, is your attitude towards तो God? परमेश्वर के लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है। Today have you come here आज क्या आप आए हैं यहाँ पर to check and get something from the Lord, परमेश्वर को जांचने के लिए और उससे कुछ पाने के लिए, or you have come here to seek the Lord? या आप यहाँ पर आए हैं परमेश्वर को खोजने के लिए। You know the Bible says very clearly, क्या आप जानते हैं बाइबल बहुत सरलता से ये बताती है seek ye first the kingdom of God and His कि righteousness, पहले आप परमेश्वर और उसके धर्म के राज्य की खोज करें and everything else will be added unto you. और बाकी सारी चीजें जिनको जो आप चाहते हैं वो आपके साथ में जोड़ दी जाएंगी। So coming with an expectation is not तो wrong. ये गलत बात नहीं है कि आप परमेश्वर के पास कोई अपेक्षा लेकर आते हैं। What is wrong is वो गलत क्या ये है that expectation is the only thing that is driving you to God. कि आप सिर्फ अपनी अपेक्षा के लिए ही परमेश्वर के पास आते हैं। Hello? Are we समझे? understanding? Let the expectation not drive you to God. ऐसा ना हो कि जो अपेक्षा आपकी परमेश्वर के पास है वो आपको परमेश्वर के पास लेकर आ रही है, But let God be first, लेकिन परमेश्वर के लिए आपका पहला स्थान हो। and automatically you will see that when you put an expectation, और फिर आप देखोगे जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हो और जो अपेक्षा आप उससे रखते हो, or maybe even before you put your या expectation, आप अपनी अपेक्षा उसके सामने व्यक्त करने से पहले He ही will answer you. वो आपको उत्तर दे देगा। And that is the benefit of not letting expectation lead you to और God. यही फायदा होता है जब आप अपेक्षाओं के द्वार को लेकर परमेश्वर के पास नहीं आते, लेकिन परमेश्वर के पास पहले आते हैं। You know, a lot of us see people coming in church, leaving church, हम बहुत से हम देखते हैं कि लोग कलीसिया में आते हैं, लोग कलीसिया छोड़ते हैं। you know, some people just keep on doing church hopping. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में बस ऐसे ही कूदते रहते हैं। Amen? Now, Amen. what is the problem with those people? और ऐसे लोगों के साथ में क्या समस्या होती The है? problem is their expectation is not met. समस्या ये है कि उनकी जो अपेक्षा होती है परमेश्वर से उसका समाधान नहीं होता है या वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, Because their expectation is not from the Lord. क्योंकि उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। Not वो परमेश्वर से नहीं। वो परमेश्वर से नहीं है, But their expectation is from the man of God. लेकिन वो परमेश्वर पे अपेक्षा रखने की बजाय वो परमेश्वर के दास के ऊपर अपेक्षा रखते हैं। So, for example, उदाहरण तौर पर if the man of God says something which is the bitter truth, अगर मान लीजिए परमेश्वर के दास ने कोई ऐसा सत्य कह दिया जो कड़वा है, the person will stop coming from next Sunday. तो वो व्यक्ति जो है अगले रविवार से कलीसिया आना ही बंद कर देंगे। That is what expectation drives behaviors for people to come to church. और यही जो है अपेक्षाएं जो लोगों को कलीसिया में आने के लिए मजबूर करती है। But if you have an expectation where you say, "So Lord, I'm not going for the man of God, but I'm coming for you," लेकिन अगर आप यह मन में ऐसी धारणा रखते हैं कि परमेश्वर मैं किसी प्रभु के दास के लिए नहीं लेकिन तेरे लिए मैं कलीसिया में आता हूँ, you will never fail. तो आप कभी भी जो है निराश नहीं होंगे, The man of God also will never fail. क्योंकि प्रभु का दास भी और फिर वो प्रभु का दास भी कभी निराश नहीं You know होगा। why? आप जानते हैं क्यों? Because even if he says the bitter truth, भले ही वो प्रभु का दास कितना भी कड़वा सत्य क्यों ना बोले, you will say, "Oh, it's from the Lord. आप कहोगे कि नहीं ये परमेश्वर है जो मुझसे दास के द्वारा बात कर He's रहा है molding me and making me the way He wants और to." प्रभु जो है मुझे तोड़ रहा है, मुझे बना रहा है, वैसे ढाल रहा है जैसे वो मैं चाहता है कि मैं You बनूं। will see the potter, then you will see something else. और आप फिर कुछ और नहीं देखने के बजाय आप परमेश्वर को एक जो है कुम्हार के जैसे देखोगे And you will see, yes, I am the pot that is getting ready for a और आप big कहोगे कि हाँ मैं तो वो मिट्टी हूँ जो एक घड़े में तैयार हो रहा है। You know, you see, I ask a lot of people to sing here. मैं आप देखती हूँ कि मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को गीत गाने के लिए आगे बुलाता हूँ Half the church may be singing. और कई बार ऐसा होता है आधी कलीसिया इधर होती है ऊपर गाने के लिए। You know, there is a purpose and a reason for एक it. उद्देश्य है उसका ऐसा करने के पीछे, यह एक कारण है। If you see, most of them are youths. अगर आप देखोगे बहुत सारे जो है जितने भी यहाँ पर आते हैं वो जवान बच्चे हैं, Why? They are in a process of becoming better people. जहाँ वो एक अच्छे जो है व्यक्ति बनने की जो है प्रक्रिया में है। Today, maybe they are just standing at the back and trying to sing. आज हो सकता है कि वो यहाँ पर बस खड़े होकर गाने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर You know, रहे हैं। people who
watching the social media and say, "Hey, these three people are not singing. Why are they standing?" और हो सकता है कि जो सोशल मीडिया पे देखते होंगे वो बोलते होंगे 3 बच्चे यहाँ पर होते हैं वो तो गाते नहीं है, क्यों खड़ा करते हैं इनको? But I'll tell you something. लेकिन मैं आपको बताता हूँ, There'll be a day लेकिन एक ऐसा दिन आने वाला when they है will sing. जब वो गीत गाएंगे People will get healed. और लोग चंगाई पाएंगे। Even if they're murmuring here right और now, भले ही अभी वो यहाँ पर ऐसे गड़बड़ करते हैं गीतों को, they are not singing with the right vocal. वो अच्छे सुर में नहीं गाते हैं, They will be the भले dil ka tukda like David, singing. and जैसे दाऊद परमेश्वर के दिल का टुकड़ा था वैसे वो गीत गाएंगे आगे So चलकर। whatever happens in this church, जो कुछ भी इस कलीसिया में होता whatever है, you declare in the church, जो कुछ भी आप घोषणा करते हो इस whatever कलीसिया you में, have prayed in the church, जो कुछ भी आपने प्रार्थना की है इस the कलीसिया Lord में, is listening to every word that is coming out of this तो mouth. परमेश्वर जो है हर वो शब्दों को जो है उसको घोषित कर रहा है जो आपके मुख से निकलते हैं। And when we look at Corinthians, 2 Corinthians chapter 12, और verse जब हम 7, देखते हैं दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक 12वीं अध्याय, it's a person who never got healed. वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो कभी चंगाई नहीं पाया। Hallelujah. हालेलुया। Open your Bibles to अपने 2 बाइबल को Corinthians दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक 12वीं अध्याय 7. 7वां वचन। और इसीलिए मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। Amen. आमीन। This person never got healed. और ये व्यक्ति जो है वो कभी चंगाई नहीं पाया। Who is this person? कौन है व्यक्ति? Mr. Paul, पौलुस, प्रेरित पौलुस, who wrote most of the New Testament. जिसने जो है नया करार के बहुत सारे किताबों को उसने लिखा है। So many of the New Testament that you're reading, कि बहुत सारे जो नया करार में किताब आप पढ़ते हैं he himself never got healed. वो उसने लिखे हैं, लेकिन वो खुद कभी चंगाई नहीं He's पाया। talked big verses on healing. और उसने चंगाई के ऊपर बड़े बड़े जो है वचन लिखे He होंगे। healed so many people. उसने कितने सारे लोगों को चंगाई दिया, And I will see that today. और आज हम उसे भी देखेंगे। Okay, as you have read, जैसे हमने पढ़ा, Bible doesn't talk about what kind of thorn in the flesh this person had. और क्षमा करें, बाइबल में ये कभी नहीं लिखा है कि किस प्रकार का वो कांटा उसके जो है मांस में चुभा था। Could be some sickness like fever. और हो सकता है कि वो बुखार होगा, He was getting fits. और हो सकता है उसे फिट आते होंगे, He could have some disease which was very, very visible. और हो सकता है जो है कोई भी बीमारी होगी जो बहुत ही ऐसे दिखाई पड़ती होगी। So if you open a Bible to Galatians chapter 4, यदि हम खोलेंगे गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय 13 and 14. Galatians chapter 4 verse 4 13 and 14. अध्याय 13 और 14। परंतु तुम जानते हो कि पहले मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी तुच्छ न जाना, न उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। Amen. आमीन। What? This is Paul. ये कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। What is Paul saying? पौलुस यहाँ पर क्या कह Have रहा you है? seen my sickness? You've seen my physical कि illness. जब तुमने मेरी शारीरिक दशा को देखा, Which means that whatever the thorn in the flesh was, कि जो कुछ भी मेरे उस शरीर में वो जो कांटा चुभा था, the thorn in the flesh that he spoke in the 2 Corinthians chapter 12 verse 7. जो दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक 12वीं अध्याय के 7वें वचन में वो कह रहा है, He's telling here to his people, वो यहाँ पर ये लोगों को गलाती में कह you रहा have seen है my sickness, you've seen my physical illness, कि तुमने मेरी शारीरिक समस्या को तो देखा ही था, but you didn't judge me for that. लेकिन तुमने मेरा उसके लिए न्याय नहीं किया। You didn't tell me, oh, this fellow is preaching, but see himself, वो तो खुद को नहीं है उसके पास. तुमने कभी भी ऐसे नहीं कहा कि देखो दूसरों को तो बड़ी चंगाई दे रहा है लेकिन खुद कितना बीमार है। But you accepted me. लेकिन तुमने मुझे वैसे ही स्वीकार किया। What is important is you see that this person was really sick. क्या ज्यादा जरूरी है कि ये व्यक्ति सच में बहुत ही बीमार था। Now when you come back to 2 Corinthians chapter अब 12, जब हम दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक में आते हैं, verse 8 and 9, 12वीं अध्याय उसका 8 और 9 वचन, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। Amen. आमीन। Most of us when we pray, हम में
से बहुत से लोग जब हम प्रार्थना करते हैं, we use this verse. हम ये वचन को इस्तेमाल करते The हैं Lord says, Father, my grace is sufficient for कि you. परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। Is it stopping there? क्या ये यहाँ पर ही खत्म होता है? Is it stopping there? क्या ये यहीं पर खत्म होता है, Or is it having some colon and moving ahead? या उसके आगे एक जो है अल्प विराम है और उसके आगे भी चल रहा है? It says that my grace is sufficient for you. यहाँ पर लिखा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। That means grace here talks about loving kindness. क्योंकि यहाँ पर जो अनुग्रह के बारे में बात कर रहा है वो प्रेमीपन है, It talks about mercy of God. वो परमेश्वर की दया के बारे में बात कर रहा It है, talks about God being available regardless of situation. कि ये बता रहा है कि परमेश्वर हर समय तत्पर है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो। And it just doesn't talk about grace. और सिर्फ अनुग्रह के बारे में नहीं It कह talks रहा, about His power, the Lord's वो power, परमेश्वर के सामर्थ के बारे में भी which कह is रहा also है, protecting जो हमें संरक्षण करता है our weakness. हमारी निर्बलताओं में। Therefore, I will be more gladly boast in my weakness, so that the power of Christ may dwell in me. इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। The grace of God परमेश्वर का जो अनुग्रह है is not just something that we read here. वो सिर्फ उतना ही नहीं है जिसके बारे में हमने पढ़ा है। The power of God परमेश्वर का जो सामर्थ है only gets manifested in our weakness. वो सिर्फ हमारी निर्बलताओं में जो है प्रकट होता है। Sometimes कई बार we feel very weak. हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत कमजोर हैं, Physically we feel very weak. शारीरिक रूप से हमें बहुत कमजोर महसूस होता है, Financially we feel very weak. आर्थिक रूप से हमें कमजोर महसूस होता And है, that weakness puts us to a और discouragement. ऐसी निर्बलताओं में हमें जो है निराशा आ जाती है। And in that weakness, even Paul was fighting the thorn in his flesh. और ऐसी निराशाओं में पौलुस भी वो उसके शरीर में छुपा हुआ वो कांटे के बारे में कह रहा है। But whatever the situation that he was going लेकिन through, जिस किसी भी परिस्थिति से वो गुजर रहा था, he kept on working and वो फिर moving. भी चलता रहा। He didn't say, I will sit today on a Sunday and sleep at the house. उसने ये नहीं कहा कि इस रविवार को मैं आराम से बैठा रहूंगा, अपने घर पे सो जाऊंगा। He didn't prioritize any other work, but he prioritized his उसने ministry. दूसरे कोई काम को जो है तुलना उतना जो ऊंचा दर्जा नहीं दिया जितना प्रभु को दिया। What I'm trying to tell you, मैं यहाँ पर आपसे क्या कहना चाहता that हूँ weakness that Paul had कि जो वो कमजोरी पौलुस की थी was his power. वो उसका सामर्थ था। Today, if you're going through a weak area आज अगर आप कोई कमजोर क्षेत्र से आपके जीवन में गुजर रहे and हैं you have prayed, और आप प्रार्थना किए हैं, Paul prayed 3 times, पौलुस ने 3 बार प्रार्थना and after किया that he just stopped praying. और उसके बाद उसने उस चीज के लिए प्रार्थना करना छोड़ Sometimes we दिया। are praying for something, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज के लिए प्रार्थना करते but we हैं, have not seek the will of God. लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं खोजते। But the Lord has a different sovereign plan for you. लेकिन परमेश्वर का जो है एकदम उत्तम सर्वोच्च जो है आपके लिए कोई योजना है। God, for Paul prayed for healing, पौलुस ने चंगाई के लिए प्रार्थना किया, and what God was trying to do with that, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर क्या करना चाहता था उसके साथ? God was showing him something else. परमेश्वर उसे कुछ और दिखाने की कोशिश कर God रहे was थे। making him humble. वो उसे दीन बना रहे He थे। was helping him to remember God in that weakness. वो उसे उसकी निर्बलताओं में भी परमेश्वर को स्मरण करे, ऐसा करने के लिए सहायता कर You रहे know, थे। sometimes when we have everything in कई life, बार ऐसा होता है हमारे जीवन में हमारे पास सब कुछ है, that time to remember God is just the next thing. तब उस समय में परमेश्वर को याद करना तो बहुत दूर की बात है, मतलब we'll take it lift from क्योंकि हम granted. ऐसे ही आराम से ऐसे लेते हैं कि हाँ सब कुछ तो है, अभी क्या चाहिए? अभी और क्या चाहिए। I'll pray later. तो हम परमेश्वर को याद ही नहीं करते, हम प्रार्थना बाद में करेंगे कहते But हैं। when we are in the weakness, लेकिन जब हम हमारी निर्बलताओं में हैं, when we are in a challenging जब हम किसी situation, चुनौती से गुजर रहे हैं, that is the time we remember God like anything. ये वो समय है जब हम परमेश्वर को बहुत याद करते हैं। If you tell your neighbor to hold your hand, जब हम that's the परमेश्वर को कहते हैं कि अपना क्षमा करें, जब हम पड़ोसी को कहते हैं अपना हाथ पकड़े, and the person is going through a weak time. और वो व्यक्ति एक जो है कठिन समय से गुजर रहा है, The way you all prayed right now, जैसे आपने प्रार्थना की, you will maybe just pull off the hand only. That is the power that in which you will pray. और जो है तब हो सकता है आप उसका हाथ ही ऐसा छीन लोगे और आप इतना प्रार्थना जोर जोर से करोगे उस टाइम When पे। we were in the previous church, जब हम हमारी पहले वाली कलीसिया में थे, you can't stand next to the neighbor so close. आप अपने पड़ोसी के इतने नजदीक नहीं खड़े रह सकते, You're doing this. क्योंकि वहाँ पे लोग ऐसे ऐसे करके इतना अपने आप को हिला That कर power बात is करते so थे। much. वो इतना सामर्थ था
के And you know, अंदर we stop praying and we'll be like looking, अरे क्या कर रहा कि है? ऐसा होगा कि हम प्रार्थना करना रुक जाएंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। But to make it really simple, लेकिन उसे सरल बताने के let लिए us not go into that weak spot. वो हम उस परिस्थिति को वैसे कमजोर हालत में पहुंचने ही ना दें, For us to start praying. ताकि हम प्रार्थना तब शुरू करें। We are already in a good हम situation, एक अच्छी परिस्थिति में हैं, so start praying now. तो यहीं पर प्रार्थना करना शुरू So करें, that ताकि we don't go into that weakness. ताकि हम उस कठिन परिस्थिति में, कमजोर परिस्थिति में पहुंचे ही नहीं। You know, sometimes I get calls for people to pray. कई बार ऐसा होता है कि मुझे प्रार्थना करने के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए कॉल आते हैं। You know, and the certain situations that when we look and you know, when the Holy Spirit is speaking, और कई बार ऐसी कुछ परिस्थितियां होती है जहाँ पवित्र आत्मा बातें करने लगता you है, know, we feel that this all could have been avoided. और हमें ऐसा लगता है कि ये जितना भी परिस्थिति हो रही थी, ये सारी चीजों को हम मतलब ऐसा हो ही ना हो, ऐसा भी हो But सकता that था। person wouldn't have even reached there. वो परिस्थिति तक वो व्यक्ति पहुंच ही नहीं सकता था। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because the person did not spend time in prayer. क्योंकि वो व्यक्ति ने परमेश्वर के साथ में समय नहीं बिताया, इस कारण वो उस परिस्थिति में पहुंच The गया। person did not spend time in coming to church and giving his time to the वो Lord. व्यक्ति ने कलीसिया में आने के लिए समय नहीं निकाला, परमेश्वर को अपना समय नहीं दिया। The person was running behind money. वो व्यक्ति जो है पैसे के पीछे दौड़ रहा था। Was running because boss was calling him every day to वो come. इसलिए यहाँ वहाँ पे दौड़ रहा था क्योंकि बॉस उन्हें बुला रहे थे, And one problem somewhere, और एक समस्या कहीं पर आई, and that person is gone on the bed. वो व्यक्ति जो है बेड पर गिर गया, गिरा नहीं, I'm just मतलब लेटना पड़ा उसे या बिस्तर पर हो गया। And now the person is saying, "Arey, I can't. Boss is calling. I can't go." और वो अभी व्यक्ति ऐसा हो गया कि बॉस मुझे बुला रहे हैं लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ। Then they remember, फिर उन्हें याद आता है Pastor, pray for us. और फिर कहते हैं, पासवान हमारे लिए प्रार्थना करो। But if God would have taken care of लेकिन us अगर then, परमेश्वर हमारी जो है अच्छे समय में यदि हम परमेश्वर के करीब होते and we would have continued doing what we are supposed to do, only 2 hours, na? और जो हमें करना है वो लगातार हम करते रहते, सिर्फ 2 घंटे हैं जो हमें परमेश्वर के भवन में आना है, Continuously doing the same thing again and again and again. और लगातार हम वही चीज करते रहते, God definitely doesn't allow those things to come against तो us. परमेश्वर निश्चय हमारे करीब वो चीजों को आने नहीं देता। You know, all you guys who are here today, जितने भी आप यहाँ पर हैं whatever अभी, you prayed for today, जो कुछ भी आप आज प्रार्थना करते हो, while you will experience the blessing, जब आपको आशीष को अनुभव करोगे, but unfortunately, लेकिन दुख की बात यह है, the empty chairs where people should have been here, जहाँ पर जो खाली कुर्सियां जहाँ लोगों को बैठना चाहिए था, have missed that blessing today in Jesus' name. उन्होंने उस आशीष को आज खो दिया। But the most important aspect, लेकिन सबसे उत्तम बात यहाँ पर यह है, and we pray that और हम ये हमेशा प्रार्थना While करते they are at हैं home, कि भले ही वो अपने घरों में बैठे they will हैं, experience the same blessing in वो Jesus' name. सारी आशीषों को जो हम अनुभव कर रहे हैं वो भी करें, That is what grace is. और यही परमेश्वर का अनुग्रह The बताता power है। to manifest और जो सामर्थ है उसे प्रकट करने के is in लिए your hand. वो आपके हाथों में है, It is in your वो hand. आपके हाथों में You है, have to start using it. आपको उसे इस्तेमाल करना शुरू करना So है, that next time you don't ask your neighbor for help. ताकि अगली बार आप अपने पड़ोसी से मदद के लिए ना मांगो, Don't run to the man of God because of some healing that we और require. जो है प्रभु के दास के पास दौड़ते हुए ना जाओ कोई चंगाई पाने के The लिए, God that you serve लेकिन जो परमेश्वर जिसकी आप सेवा करते हो, will definitely answer your prayer as वो well. आपकी प्रार्थना का निश्चय उत्तर देगा। He will answer your prayer, not your pastor's वो prayer. आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, पासवान की प्रार्थना का नहीं। And that is the message for today. और वही आज का संदेश है। Today saw, thorn in the flesh that we see in Paul's life. आज का जो पौलुस के जो शरीर में जो कांटा छुपा था उसके बारे में जो हम कह रहे हैं, We don't want to know what kind of thorn that he had. हम ये जानना नहीं चाहते कि उसके जीवन में या उसके शरीर में कौन सा कांटा अटका था, But what is the thorn in my life? लेकिन हमारे जीवन में आज वो कांटा क्या है? Do I get aggravated when bad situations happen and then run to God? क्या ऐसी परिस्थिति मेरे जीवन में आती है कि जब परिस्थितियां खराब हो जाए तब मैं परमेश्वर के पास दौड़ता हूँ, Or I am proactive today? या मैं आज भी उतना ही सक्रिय हूँ जितना होना चाहिए? If I am running because of situation, अगर मैं परिस्थिति के कारण पर प्रभु के पास दौड़ रहा हूँ, that's a thorn. तो वो एक कांटा है हमारे जीवन में, Remove it in Jesus. तो उसे निकाल दो यीशु के नाम से। If there is situation of finances, अगर जो है आर्थिक समस्याओं की परिस्थिति हमारे जीवन में आ रही है, and
And we are saying, why is this thorn that is not allowing me to prosper? और हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो कांटा है वो हमें आगे बढ़ने क्यों नहीं दे रहा है, उन्नति करने क्यों नहीं दे रहा है? Because the thorn here is the seed that you're supposed to sow, you're keeping it and using it for other things. क्योंकि ये वो बीज है जिसे आपके जीवन में आपको कहीं और बोना है, लेकिन आप उसे अपने पास ही पकड़ कर रखे हो। The tithe, which is supposed to be given to the church, और आपका दशमांश जो कलीसिया में देना चाहिए, you're using it to help somebody else, or you're using it for your personal आप experience. अपने खुद के व्यक्तिगत खर्चों के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे हो या आप किसी और की मदद करने के लिए दे रहे हो। So the altar that you're supposed to build, तो जो वेदी आपको तैयार करनी है, you've already destroyed it. आपने उसको तो नाश कर दिया है। Now you're at the mercy of the devil, आप अब जो है शैतान की दया पर पल रहे हो, where he can do anything that he wants. जहाँ पर उसे जो करना है वो वैसा करता है। And this is one of the thorns in the area of finances. और ये हमारे जीवन में जो है आर्थिक समस्याओं में ये एक कांटा है। If there is a thorn which is creating sickness in your house, अगर आपके परिवार के जीवन में या आपके घर में बीमारी का कोई ऐसा कांटा है, especially in a particular month of the year, या खास तौर पर कोई साल का एक ऐसा महीना होता है जहाँ बहुत बीमार होते or हैं, there is confusion happening at a certain place or the certain days of the month, या महीने के कुछ ऐसे दिन होते हैं जहाँ पर, या कोई दिन ऐसे होते हैं सप्ताह में जहाँ पर बहुत गड़बड़ी होती है। for example, every Sunday you have a fight in the house. मान लीजिए हर रविवार को आपके घर पे झगड़े होते हैं, You know, that's also a thorn in the flesh. ये भी एक जो है कांटा है आपके शरीर में। Pull it out in the name of Jesus. उसे निकाल खींचे यीशु के नाम से। Yesterday when we were speaking to the youths, कल जब हम युवाओं से बात कर रहे we were थे, telling them to be patient in life. हम उन्हें कह रहे थे कि आपको अपने जीवन में धीरज धरना है, And they need to replace, and while they are patient, they also need to put a process of improvement in their life. और जहाँ वो धीरज का प्रक्रिया में है, वहाँ पर उन्हें अपने जीवन में जो है बदलाव लेकर आना है जो भलाई के लिए है। And that process is not just going to happen in day 1, day 2. और एक ऐसी प्रक्रिया जो एक दिन में या 2 दिन में नहीं होने It's a वाली, continuous thing. ये लगातार करते रहने Till वाली the time प्रक्रिया they है, become perfect. जब तक कि वो परिपूर्ण होना हो जाए, जब तक सिद्ध न हो जाए। Today, what is that you're doing? आज क्या है जो आप कर रहे हैं ऐसा? So if you've come to church तो today, यदि आप आज कलीसिया में आए हैं, what is that you're doing to become perfect? आप क्या वो चीज कर रहे हैं जो आपको सिद्ध बनाती है? What is your expectation? Just close your eyes right now. आपकी अपेक्षा क्या है? Close your eyes. अपनी आंखों को बंद करें। What is your expectation that you've come today? आज कौन सी अपेक्षा के साथ में आप आए हैं? You know, definitely you've come to seek the Lord. आप सही बात है कि आप परमेश्वर को खोजने आए हैं, But what is that expectation? लेकिन कोई एक अपेक्षा लेकर तो आप आए होंगे। And now think about what is that you're doing to meet that expectation. और अभी आप उस चीज के बारे में सोचें कि आप क्या कर रहे हैं कि आपकी वो अपेक्षा पूरी हो। How much did you pray the last entire week for that expectation to be met? पिछला पूरा सप्ताह में आपने वो अपेक्षा को पूरा करने के लिए कितना प्रार्थना किया? And if you have prayed, और अगर आपने प्रार्थना किया है, what was the word of God that you used when you prayed that prayer? तो जब आपने प्रार्थना किया तो आपने कौन सा प्रभु का उस वचन को इस्तेमाल किया वो प्रार्थना करने के लिए? Because if you've just prayed prayers, क्योंकि अगर आपने सिर्फ शब्दों से प्रार्थना की, but there is no word of God, लेकिन परमेश्वर का वचन इसके साथ में नहीं जुड़ा है, you didn't reminded God that God you have promised, that's the reason I pray this prayer. और आपने प्रभु को याद नहीं दिलाया कि परमेश्वर तेरे वचन में तूने ये कहा है और इस कारण मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, Then that prayer is nothing but a babble. तो वो जो प्रार्थना है फिर कोई प्रार्थना नहीं है, बल्कि आप सिर्फ जो है बड़बड़ कर रहे हो। So today as you change, तो आज जैसे आप बदलाव को लेकर आते हो, the thorns that you have been getting poked from, जो कांटे आपको जो चुभते आ रहे हैं अभी is तक, getting removed in the name of वो Jesus. निकल जा रहा है यीशु के नाम God से। is healing you by His precious blood. यीशु मसीह आपको उसके पवित्र लहू के द्वारा चंगाई दे The रहा है, scars that it creates, the scars that it लेकिन creates, जो निशान वो कांटे छोड़ जाते even हैं, that will not be in your life in Jesus' वो name. भी नहीं बचेंगे आपके जीवन में यीशु के नाम से। Father, I pray, पिता हम प्रार्थना करते हैं, all those who are seeking you right now, जितने लोग तुझे खोज रहे हैं इस समय, we pray, Lord, your grace is definitely sufficient हम for us. प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह काफी है And your power is your power is made strong in our weakness. और आपका सामर्थ जो है हमारी निर्बलता में हमें बल देता है। Complete what you have for our destiny. उसे पूरा कर जो आप
हमारे नियति के लिए हमारे जीवन में करने वाले हैं। I believe your coming here is not going wasted. और मैं विश्वास करता हूँ कि आपका यहाँ पर आना व्यर्थ नहीं The जाएगा। Lord is doing something different. और परमेश्वर आपके जीवन में कुछ तो अलग कर रहा है And the आज। Lord is going to heal you completely in और Jesus' प्रभु name. आपको परिपूर्ण तरीके से चंगाई देने वाले हैं। In my conclusion, निष्कर्ष में I want you to look around. मैं चाहता हूँ कि आप अपने आसपास देखें, Look around. अपने आसपास देखें। Some of us will see some empty chairs. और हम में से जो है हमको कोई ऐसी खाली कुर्सियां दिखेंगी। These chairs are the opportunities that we lost. और ये वो कुर्सियां हैं, ये जो खाली कुर्सियां हैं, ये वो मौका है जिसे हमने खो दिया। Amen? आमीन। What am I trying to say? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? If your friend in the church अगर आपके मित्र कलीसिया में is not there, वो नहीं दिख रहे हैं आपको आज, go visit them. उन्हें जाके मिले। If your friend in the church अगर आपकी कलीसिया के जो मित्र has है not been coming, वो काफी समय से नहीं आ Call रहे them हैं, तो उन्हें कॉल करें। but लेकिन don't sit and gossip. उनके बारे में बैठ के बातें न करें। Gossip about why, क्यों नहीं आ रहे हैं, what happened, क्या हुआ उनको, what is the problem. क्या समस्या है उनकी। Just say, you didn't come, I'm just calling you to pray for you. बस उनके लिए उनसे बातें करें, उनको कहें कि आप आए नहीं, इसके लिए हमने फोन किया है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Second opportunity that we need to pray for. दूसरा ये मौका है जिनके लिए हमें प्रार्थना करना है, Get somebody along. वो है कि किसी को अपने साथ में लेकर आए कलीसिया में। Pray that God would help you to evangelize. प्रार्थना करें कि प्रभु आपको सहायता करे सुसमाचार प्रचार करने के Because लिए। the evangelism should be a thorn which we should enjoy, that we should be able to use it for the power of God to be established in our वो life. जो है सुसमाचार प्रचार हमारे लिए एक ऐसा, वो हमारे लिए एक जो है कांटा बन जाए जिसकी सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा हम उसको आनंद उठा सके। Paul's weakness was a reason for him to be the biggest evangelist of his time. और जो पौलुस का जो कांटा था या उसकी जो निर्बलता थी, वो उसके लिए एक कारण बना कि वो सबसे बड़ा सुसमाचार प्रचारक बन And सका। today we pray as a church, we will experience that pain to evangelize like never और before. आज हम प्रार्थना करेंगे कि हम जो है वो उस दर्द को हम अनुभव कर सके जैसे हमने पहले नहीं किया सुसमाचार प्रचार के द्वारा। If you are sitting in a place where your neighbor is asking you to pray, अगर आप एक ऐसी जगह पर बैठे हो जहाँ पर आपका पड़ोसी आपको कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, and you've not prayed, और आपने अभी तक कभी प्रार्थना नहीं you किया, are accountable to God. तो आप जो है परमेश्वर को उसका जवाब दोगे। Hallelujah. हालेलुया। If your neighbor अगर आपके पड़ोसी has not been coming to वो church कलीसिया नहीं आते हैं and you have not done anything और about it, आपने अभी तक उसके लिए कुछ किया ही नहीं you है, are accountable. तो आप उसके लिए जो है परमेश्वर को जवाब दोगे। When the Lord comes, we will be all accountable. तो जब परमेश्वर का आगमन होगा तब हम सारे जो है जवाब देने के लिए हम खड़े रहेंगे। I don't know why I said what I said, मैं नहीं जानता कि मैंने क्यों कहा जो मैंने कहा, but I know लेकिन मैं जानता हूँ that the Lord is going to increase His कि church. परमेश्वर इस कलीसिया को बहुतायत से बढ़ाने वाले हैं And you are going to be in the forefront of doing और it. आप सारे जो है वो आगे रहने वाले हैं। You are going to be workers, ministers to do that in Jesus. आपको परमेश्वर के राज्य में सेवक बनने वाले हैं जो ये कार्य करने के लिए आगे बढ़कर करेंगे। In Jesus' name we यीशु pray. के नाम से मैं प्रार्थना की। Even as we stand and we prepare ourselves for offering, जैसे हम खड़े होते हैं और अर्पण की तैयारी करते हैं, we prayed for finances, हमने जो है फाइनेंसेस के लिए प्रार्थना किया, पैसे के संबंध में हमने प्रार्थना किया। and I know one thing, और एक चीज मैं जानता हूँ, that God is not a God who is a God who will keep his debt, और जो है परमेश्वर कोई किसी का कर्जदार नहीं है, and He's a God who's a rich God. और वो हमारा परमेश्वर जो है अमीर परमेश्वर है। He doesn't look at your money. वो आपके पैसे को नहीं देखता, But today He's looking at your heart. लेकिन आज वो आपके हृदय को देखता है। So whatever you're sowing, कि जो कुछ भी आप अभी बोने वाले हो, tell the Lord that this is my love offering. परमेश्वर से कहे कि ये मेरा प्रेम भेंट है। I'm doing that with all gratefulness. मैं अपने पूरे जो है आभारी मन से मैं करता हूँ। Pray that prayer. ये प्रार्थना करें, Before even we ask the choir to come ahead, और जो है क्वायर को आगे बुलाने से पहले, because the choir is all sleeping, they're not even paying attention. और क्वायर जो है हमारा ध्यान नहीं दे रहा है। Okay? Now as the choir is coming, I believe that you're praying. और जैसे क्वायर आगे आते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सारे प्रार्थना कर रहे हैं। As the choir is going to minister unto us, और जैसे क्वायर हमारे लिए गीत गाने वाले that हैं, money that you're sowing, जो पैसा आप यहाँ पर बोने वाले it's हो, your seed.
ये आपका जो बीज है towards the Lord as a love offering. परमेश्वर की तरफ एक प्रेम भेंट गिराए। Amen. It's a love offering. ये एक प्रेम भेंट है। Hallelujah. हालेलुया। We call upon Brother Daniel और भाई डैनियल को आगे बुलाएंगे to give us the offering song. अर्पण का गीत देने के लिए। Praise the Lord. मराठी सॉन्ग है, ये मराठी सॉन्ग है, आपको आता रहेगा, बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ओके, बोला 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 सारे बोला, बोला 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 सारे बोला, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला 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 सारे बोला, बोला 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 सारे बोला, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय। येशूची प्रीती है भारी, है भारी, है भारी, येशूची सामर्थ है भारी, है भारी, है भारी, येशूची प्रीती है भारी, है भारी, है भारी, येशूची सामर्थ है भारी, है भारी, है भारी, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला 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 सारे बोला, बोला 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 सारे बोला, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय। येशूची कृपा लय भारी, लय भारी, लय भारी, येशूची कृपा लय भारी, लय भारी, लय भारी, त्याचा अभिषेक लय भारी, लय भारी, लय भारी, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय। शब्द वैसे ही है, बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो 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 सारे बोलो, बोलो 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 सारे बोलो, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो 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 सारे बोलो, बोलो 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 सारे बोलो, बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। Jesus name we sing. Amen. जैसे भी हमने गाए, however we sang, जैसे भी गीत गाया होगा the Lord has understood the message. परमेश्वर ने इसे समझ लिया है। We have just hailed His name, हमने सिर्फ उसके नाम को ऊंचा उठाया है and wherever we hail, however we और hail, जैसे भी हम उसके नाम
dedicated unto the Lord. हम परमेश्वर के लिए वो करते Now हैं। let's just stretch our hands towards the और offering. अपने हाथों को अर्पण की ओर बढ़ाएंगे और Father, even बताएंगे। as we have sowed in your kingdom, और प्रभु जैसे हमने तेरे राज्य में बोया है, we know this is a seed हम जानते हैं ये वो बीज है which is going to bring a harvest जो ऐसी कटनी को लेकर in our आएगा life, हमारे जीवन में, in our families, हमारे परिवारों in में, our businesses, हमारे व्यवसायों in our में, हमारे workplaces, काम की जगहों for पर, promotions, हमारी उत्तीर्णता के लिए, and most important, और उससे कहीं अधिक this money is going to be used for your ये kingdom. पैसा जो है वो आपके राज्य के लिए इस्तेमाल किया It's going जाएगा। to be used for your kingdom to be established here on earth. आपके राज्य को जो यहाँ पर स्थापित होना है इस पृथ्वी पर भी उसे उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। Father, we have given very little of what we have, पिता जितना थोड़ा हमारे पास था उसमें से हमने आपको दिया है, but we know लेकिन हम ये जानते हैं it's more than enough for your harvest to come, कि तेरी कटनी आने के लिए ये काफी है, because you've seen our hearts. क्योंकि तूने हमारे हृदय को देखा है। This is our cheerful giving ये unto you. हमारा जो है आभारी मन के साथ में प्रभु हमने आपको And दिया as we है, have sown, और जैसे हमने ये बीज बोया है, our church is not going to be a church who will ask, और हमारी कलीसिया एक ऐसी कलीसिया नहीं रहने वाली है जो सिर्फ मांगती रहेगी, but it will be a church who will give, लेकिन एक ऐसी कलीसिया बन जाएगी जो देने लगेगी। not just to this place. सिर्फ प्रभु के भवन में ही नहीं देना, Wherever they go, they're going to give. लेकिन जहाँ कहीं भी जाएंगे उनका हाथ देने के लिए भी They're आगे going to बढ़ेगा। lend unto nations. तो हम जो है देश विदेशों को भी हम देने वाले In बनेंगे। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना की। And the church said, और कलीसिया ने कहा, जोर से बोलो, जोर से कहें, और जोर से बोलो. We have given a shout offering unto the हमने Lord. परमेश्वर को जो है हमारी पुकार से, चिल्लाहट से हमने जो है परमेश्वर को अर्पण दिया है। Let's just be seated as we listen to the offering, and we can tell the media to shut down.